Hello everyone, this is Dr. Abhilasha Gautam, Principal of Kasturiram College of Higher Education. Today, I shall talk about one very important aspect of B.Ed curriculum, and that one important aspect of B.Ed curriculum is one theory of B.Ed curriculum that is related to language across the curriculum, and these two theories are B.F. Skinner's and Noam Chomsky's language theories. These theories are related to Unit 3 of B.Ed 105 paper code, and its name is Language Across the Curriculum. Let us begin with the objectives of this lecture are: first, after the completion of this presentation, the students will be able to explain B.F. Skinner's view of language acquisition. They will be able to explain Noam Chomsky's view of language acquisition, and on the basis of these two views that they will learn, they will be definitely able to differentiate between these two language acquisition views of B.F. Skinner and Noam Chomsky. As we all know, that language acquisition consists of a lot of factors. There are many factors that are related to language acquisition, and it is not a one-way process. Our heredity, environment and many more factors plays the major role in language acquisition. अगर हम अलग अलग व्यूज़ की थियोरीज़ की बात करते हैं भाषा के ग्रहण को लेकर या भाषा की अधिगम को लेकर, तो सबसे पहले B.F. स्किनर का व्यू, बिहेवियरिस्ट व्यू बहुत मायने रखता है। B.F. स्किनर कौन थे? ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा लर्निंग एंड टीचिंग में, या फिर साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स रहे हैं उन्होंने B.F. स्किनर का नाम सुना होगा और वो जानते होंगे कि B.F. स्किनर एक बहुत फेमस बिहेवियरिस्ट रहे हैं। B.F. स्किनर का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगी पहले। He was an American psychologist. He was a behaviorist, author, innovator and social philosopher. Skinner developed behavior analysis, especially the philosophy of radical behaviorism. उन्होंने radical behaviorism की संज्ञा दी है। Found the experimental analysis of behavior. Experimental analysis of behavior में B.F. स्किनर ने यह मेंटेन किया कि जो बिहेवियर एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा हम प्रूव कर सकते हैं, दोज आर द बिहेवियर्स अंडर द थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का जो स्कूल है वो मेंटेन करता है कि हमारे बिहेवियर्स हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ही यूज्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग टू स्ट्रेंथन द बिहेवियर। ऑपरेंट कंडीशनिंग ये फिर से एक ऐसा टर्म है जो साइकोलॉजी में आपने सुना होगा। ऑफ कोर्स B.F. स्किनर साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का नोशन दिया दैट वाज बेस्ड ऑन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, एंड ही वाज अ वेरी renowned psychologist as well as author. He published 8 books and around 180 articles related to psychology and human behavior. And he is also known as the most influential psychologist of the 20th century. अभी B.F. स्किनर का इंट्रोडक्शन दिया तो उसमें मैंने आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग और रेडिकल बिहेवियरिज्म के बारे में बात की। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग sometimes referred to as instrumental conditioning. It is a method of learning that employs rewards and punishments for behavior. Through operant conditioning, an association is made between a behavior and a consequence for that behavior. And what that radical behaviorism is? Radical behaviorism is the school of thought that was pioneered by B.F. Skinner that argues that behavior rather than mental states should be the focus of study in psychology. उनका मानना था कि यदि मनोविज्ञान में कोई अध्ययन होता है तो उस मनोविज्ञान के अध्ययन का केंद्र मानव का व्यवहार रहना चाहिए, ना कि उसकी मेंटल स्टेट्स, ना कि उसकी मानसिक परिस्थितियाँ। According to this radical behaviorism, what people think for others or feel for others or themselves or in their surroundings or how they act in their surroundings does not exist independently. एक मनुष्य कैसे एक वातावरण में रहता है
बोलता है, रिएक्ट करता है, वो इंडिपेंडेंटली नहीं करता। यह चीज़ें, उनका व्यवहारगत विशेषताएं इंडिपेंडेंटली रिएक्शंस नहीं आते, बल्कि वो रिएक्शंस या वो व्यवहार परिणाम है, रिजल्ट है ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एनवायरनमेंट्स, उसके अनुभवों का और जिस एनवायरनमेंट में, जिस वातावरण में एक व्यक्ति रहता है, उसका परिणाम है वो सारा बिहेवियर, वो सारी फीलिंग्स जो एक व्यक्ति महसूस करता है, जो एक व्यक्ति प्रदर्शित करता है। नाउ व्हाट दैट बिहेवियरिज्म इज, बिहेवियरिस्टिक स्कूल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देकर उनकी लैंग्वेज थ्योरी के ऊपर बात करूंगी। बिहेवियर is the school of psychology believes that mental states are unspecific and all behavior can be explained as stimulus and response relations। मैंने अभी आपको बताया ऑपरेंट कंडीशनिंग की संज्ञा दी है बी एफ स्किनर ने। और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या कि एक स्टिमुलस है, स्टिमुलस जितना स्ट्रॉन्ग होगा रिस्पॉन्स उतना ही स्ट्रॉन्ग आएगा। उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, बिहेवियरिस्टिक्स इस व्यू को होल्ड करते हैं कि यदि हम कोई व्यवहार को शेप करवाना चाहते हैं, एक व्यक्ति को, एक प्राणी को, एक ऑर्गेनिज्म को यदि कोई व्यवहार हम सिखाना चाहते हैं, तो एक स्टिमुलस का होना और एक रिस्पॉन्स का होना अनिवार्य है। रीइंफोर्समेंट इज द नेक्स्ट important aspect in behaviorism, and that reinforcement is what? Forcing one behavior again and again. The reinforcement may be positive or negative. It increases the probability of increasing that desired response. हम यदि चाहते हैं कि कोई व्यक्ति या बालक एक स्पेसिफिक तरीके से रिस्पॉन्ड करे या उससे रिस्पॉन्ड करना आए, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें उस बच्चे को पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देकर वो व्यवहार सिखाना होगा। कंडीशनिंग अकर्स थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। नाउ व्हाट दैट कंडीशनिंग इज, कंडीशनिंग हमारी होती है, अनुबंधन हमारा वातावरण के साथ होता है। जब हम एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करते हैं, दैट मीन्स दैट कंडीशनिंग इज अकरिंग इन दैट एनवायरनमेंट। Behavior can be observed and measured. बिहेवियरिस्ट मानते हैं कि मानव व्यवहार को ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। अब बी एफ स्किनर का लैंग्वेज के लिए व्यू क्या है? आफ्टर explaining these basics of B.F. Skinner's vocabulary words related to his behavioristic viewpoint, I will talk about what he talks about language acquisition. According to B.F. Skinner, language acquisition is a natural process, but in that natural process, what he says that reinforcement and the parents of a child plays the major role. It is not as natural as the growth and developmental aspect, and we need to reinforce a child, we need to reward a child every time he speaks something. Then that reinforcement is required to make him learn that language. Skinner viewed babies as the empty vessels in which language has to put into. वो मानते हैं कि एक बालक एक खाली वेसल है, एक एम्प्टी वेसल है और हमें लैंग्वेज उसमें पुट करनी है, और अगर हम लैंग्वेज उसमें पुट नहीं करेंगे तो बच्चा वो लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। He said children learn language from their environment and consequences of their actions. वो कहते हैं कि विद्यार्थी या बालक या एक व्यक्ति जब छोटा होता है तब वो लैंग्वेज अपने एनवायरनमेंट में जो रिएक्शंस वो देखता है, अपने एनवायरनमेंट में जो भी वो बातें सुनता है, जिस तरीके से उसको डेवलप किया जाता है, उस तरीके से ही वो लैंग्वेज सीखता है। Hence, it maintains that language is nurtured. लैंग्वेज को पोषित किया जाता है। लैंग्वेज नेचुरल तरीके से डेवलप नहीं हो सकती। नेचुरल का डेवलपमेंट हमें कराना है तो हमें वो पोषण विद्यार्थी को या उस बालक को देना होगा। A child learns language through positive reinforcement. As I have told you earlier, reinforcement का B.F. स्किनर की थ्योरी में बहुत बड़ा रोल है, और यहाँ पर भी जब वो लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में अपने व्यूज़ देते हैं तो वो कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट का
लैंग्वेज एक्विजिशन में बहुत बड़ा रोल है और लैंग्वेज एक्वायर की जा सकती है यदि बच्चे को रीइंफोर्स किया जाए, पुनर्बलन दिया जाए। और पुनर्बलन में what that positive reinforcement is that is required for the language development. His basic explanation for the development of speech was that parents tend to reward infant vocalizations by giving their attention to the infant. वो मानते हैं, उनका कहना है कि पेरेंट्स को बच्चों की स्टार्टिंग स्टेज में जब वो बैबलिंग करना शुरू करते हैं, जब वो अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट के प्रारंभिक वर्षों में होते हैं, उस वक्त पेरेंट्स को बच्चों को अटेंशन पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दिस विल प्ले लाइक अ रिवॉर्ड फॉर देम एंड दिस रिवॉर्ड विच अकॉर्डिंग टू हिम is reinforcement that increases the frequency of vocalization. He would suggest that the child will not progress from babbling to language unless the parents shape the child's language behavior. उनका मानना है कि जब तक पेरेंट्स बच्चों को रीइंफोर्समेंट नहीं देंगे, बच्चों को रीइंफोर्स नहीं करेंगे, तब तक बच्चा बैबलिंग से नेक्स्ट स्टेज पर नहीं जा पाएगा और उसकी भाषा का विकास पूर्णतः नहीं हो पाएगा. Next he states that imitation plays the major role. First what he said, that language is not that a natural process. लैंग्वेज जिस तरीके से हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वैसे नेचुरल प्रोसेस नहीं है. पेरेंट्स को मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए. दूसरा वो कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट प्लेज द मेजर रोल. जब तक पेरेंट्स बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को नोटिस नहीं करेंगे, उसको रीइंफोर्स नहीं करेंगे, उसको रिवॉर्ड नहीं करेंगे, उसको अटेंशन पे नहीं करेंगे, तब तक बच्चे नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे. थर्ड ही मेंटेन्स इमिटेशन, नकल. ही सेड कि बच्चा दूसरों की इमिटेट करके सीखता है, दूसरों की नकल करके भाषा सीख रहा है. चिल्ड्रन इमिटेट स्पीच, साउंड एंड वर्ड्स. बच्चा बोली, ध्वनियाँ और शब्द सीखता है दूसरों की नकल करके, दूसरों की नकल करता है. देन ही ग्रैस्प दैट वर्ड एंड ही स्टार्ट स्पीकिंग. फॉर एग्जाम्पल हम अपनी फैमिलीज में देखते हैं, हम जनरली व्हाट वी से कि बच्चा जब बैबलिंग शुरू करता है, बाबा बाबा जब बोलना शुरू करता है तो हम उसको अपने किसी रिलेशन के साथ जोड़ देते हैं, बाबा, पापा, मामा. लाइकवाइज हम उसको बोलना दिखा रहे हैं, उस बोलने को देखकर बच्चा बोलना सीख रहा है. दैट इज इमिटेशन. मे बी ही मे know the meaning of that word or he may not know the meaning of that word, but what he is doing, he is imitating that word. However, this theory assumes that without reinforcement imitation will not result in learning. वो फिर से कहते हैं imitate करके तो बच्चा सीखता है, लेकिन उस imitation में भी यदि reinforcement नहीं होगा तो बच्चा language नहीं सीख पाएगा. This is very important theory ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, लेकिन इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं. उन लिमिटेशंस की चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे. लिमिटेशंस इसकी पहले हैं दैट लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑन रूल्स विच कुड नॉट बी वर्कड आउट सिंपली बाय इमिटेटिंग इंडिविजुअल अटरेंसेस. पहली लिमिटेशन, लैंग्वेज का एक अपना स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज के कुछ रूल्स हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इमिटेशन करके नहीं सीखी जा सकती. Children are often unable to repeat what an adult said. Very apt. यह संभव नहीं है कि एक बालक हर वो चीज़ इमिटेट कर पाए, बोल पाए, ग्रहण कर पाए जो कि एक एडल्ट बोलता है, क्योंकि there is a lot more difference between the vocabulary, the structural pattern in language of a child and of an adult. Parents are more interested in politeness and truthfulness rather than correct grammar. We hardly cares about teaching grammar to our wards. क्या हम सोचते हैं कि हम अपने घर में छोटे बच्चों को ग्रामेटिकल रूल्स के द्वारा पढ़ाएं? नो. What we say, our behavior starts working on emotions rather than on the rules of the grammar. So these are of some of the limitations of B.F. Skinner's language acquisition theory. We will move further to another
लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, इन द क्रिटिसिज्म ऑफ B.F. स्किनर, हमारे पास एक लिंग्विस्टिक आए जिनका नाम है नोएम चॉम्स्की। आज भी उनके जो आर्टिकल्स हैं और उनकी जो एक्टिविटी हैं वो हम फेसबुक पर, यूट्यूब पर, चैनल्स पर देख सकते हैं, और वो आज भी बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी रिसर्चेस को रखते हैं, नई नई रिसर्चेस करते हैं। An American linguistic, philosopher, cognitive scientist and historian, sometimes known as the father of modern linguist. He is also known as the father of modern linguist. He has written more than 100 books and well known for the universal grammar theory. यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी का एक पार्ट है जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। चॉम्स्की का व्यू क्या है लैंग्वेज एक्विजिशन को लेकर? चॉम्स्की मानते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन इज एन इननेट स्ट्रक्चर। जन्म से ही एक व्यक्ति के अंदर लैंग्वेज को एक्वायर करने की कुछ संरचनाएं बनी हुई हैं। वो संरचनाएं एक यंत्र के रूप में काम करती हैं जिससे कि बच्चा लैंग्वेज नेचुरली सीख लेता है। उसको ना किसी पेरेंट की ज़रूरत है, ना किसी एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। इन द इनिशियल स्टेजेस whatever the child will see, he will learn all those language skills naturally without any external efforts. Language acquisition device LAD एक बहुत इम्पोर्टेंट नोशन जो चॉम्स्की ने दिया। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज द कॉन्सेप्ट, द मेंटल कैपेसिटी which enables an infant to acquire and produce language. यह एक जन्म से ही व्यक्ति के अंदर मानसिक क्षमता है जिसके आधार पर व्यक्ति भाषा बोलना सीख सकता है। He said that language acquisition device is tool found in brain and it helps in to rapidly develop the rules of language and it also helps in to encode grammar. He further said that only humans are born with LAD. सिर्फ व्यक्तियों में ही बोलने की क्षमता है, व्यक्तियों में ही ये LAD language acquisition device is not available in animals, it is only available in humans. It is not available in any other species around the world. Specific structures in the brain involved in language learning and language processing. Then children do not need any kind of training or formal learning. बच्चों को हमें किसी तरीके से भी formal training या formal learning देने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है यदि उन्हें भाषा सीखनी है। Optimal learning age for language learning is 3 to 10 years. अर्ली चाइल्डहुड में मानते हैं नोएम चॉम्स्की कि लैंग्वेज सीखना बहुत आसान है बजाय कि उम्र बढ़ जाने के पश्चात। इसको मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक पेरेंट्स अपने न्यू बॉर्न बेबी को लेकर कहीं दूसरी कंट्री में चले जाते हैं जहाँ पर कि उनकी मदर टंग के अलावा कोई और भाषा बोली जाती है। तो द चाइल्ड, द न्यू बॉर्न चाइल्ड व्हेन विल ग्रो अप इन दैट एनवायरनमेंट विल लर्न दैट लैंग्वेज ईजिली एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। जो बच्चा जब बड़ा होगा एक नए एनवायरनमेंट में, एक नए भाषा के माहौल में, वो बालक ज़्यादा जल्दी नई भाषा को सीख लेगा एज कंपेयर टू द पेरेंट्स। सो दिस नोशन स्टेट्स एंड प्रूव्स दैट ऑप्टिमल लर्निंग एज फॉर लैंग्वेज इज़ 3 to 10 years. चाइल्ड लर्न लैंग्वेज ऑन हिज ओन। बच्चा स्वयं से ही भाषा सीखता है, उसे पेरेंट्स की या किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है। एज दे ग्रो दे लर्न टू स्पीक करेक्टली। और यह भी ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को हम करेक्ट बोलना सिखाएं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे वो भाषा सही तरीके से बोलना सीखता चला जाएगा। अब ये यूनिवर्सल ग्रामर का रूल क्या कहता है? नोएम चॉम्स्की का बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट। LAD के बाद यूनिवर्सल ग्रामर, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हालांकि यूनिवर्सल ग्रामर states that children are born with universal grammar wired into their brains. हर एक बालक में एक ऐसी क्षमता है जिससे कि वो ग्रामर के रूल्स सीख जाता है और वो जन्म से ही उसके मस्तिष्क में इस प्रकार का
यंत्र है। द एबिलिटी टू लर्न ग्रामर इज बिल्ट इनटू द ह्यूमन ब्रेन फ्रॉम बर्थ रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज। एक व्यक्ति कहीं पर भी जन्मा हो, लेकिन उसके अंदर शब्दों को बोलने की क्षमता और उन शब्दों को एक वाक्य को के रूप में संरचना देने की क्षमता नेचुरल तरीके से आ जाती है। वो किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। नोम चॉम्स्की अपनी थ्योरी में ये कहते हैं, सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ सिंथेटिक स्ट्रक्चर आर यूनिवर्सल। वो मानते हैं कि पूरे संसार में लैंग्वेज के कुछ स्ट्रक्चर हैं। वो पैटर्न, चाहे वो फ्रेंच है, स्पेनिश है, उर्दू है, हिंदी है, हर एक में वो बेसिक सिंटेक्स ज़रूर होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, सब्जेक्ट हर एक लैंग्वेज में होता है, वर्ब हर एक में होता है, ऑब्जेक्ट हर एक में होता है। हर एक भाषा में थिंग्स से रिलेटेड, ह्यूमन से रिलेटेड अपनी अपनी वोकैबुलरी होती हैं, लेकिन वो पैटर्न डिफर हो सकता है, बट दे हैव दीज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हर एक भाषा में होगा। दिस इज व्हाट मेंटेन्ड बाय नोम चॉम्स्की। When the child begins to listen to his parents, he will unconsciously recognize which kind of a language he is dealing with, and he will set his grammar to the correct one. This is known as the setting of parameters. There are some limitations of Noam Chomsky's theory of language acquisition. First is, he has given a lot of examples in support of his theory. बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल्स तो दे दिए, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस वो नहीं दे पाए अपनी थ्योरी के सपोर्ट में। ही ओवर एम्फसाइजेज ऑन ग्रामर इन सेंटेंस स्ट्रक्चर। उन्होंने सेंटेंस स्ट्रक्चर में ग्रामर के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसिस कर दिया, लेकिन ग्रामर के रूल्स रेगुलेशंस किस तरीके से वेरी करते हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई। नॉट एनफ इंफॉर्मेशन ऑन हाउ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम देयर सेंटेंसेस। इस बात की भी कहीं चर्चा नहीं की गई है उनकी थ्योरी में कि जो भी बच्चा सेंटेंस बनाता है वो अर्थ क्या लेता है, किस प्रकार से वो डीकोड करता है उस ग्रामेटिकल रूल को, एंड हाउ डू दे टेक आउट मीनिंग फ्रॉम द सेंटेंसेस। Does not take into consideration children with conditions such as Down's syndrome that may affect or delay their language development. नोम चॉम्स्की ने ये तो कहा कि जन्म से ही व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है भाषा सीखने की, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने फिर से उन विकारों के लिए, उन हेरिडिटी या एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिजीज़ जो हमारी लैंग्वेज को अफेक्ट कर देती हैं, उन साइंड्रोम्स के लिए, उन डिजीज़ के लिए बात नहीं की गई है। डाउन साइंड्रोम एक इसी तरीके का साइंड्रोम है जिससे कि बच्चे के अंदर जन्म से ही भाषा के विकास में एक बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ नोम चॉम्स्की। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्किनर एंड नोम चॉम्स्कीज व्यू ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। हालांकि जब हमने ये दोनों पॉइंट्स पढ़े, अभी प्रेजेंटेशन जो हमने देखी, उसमें क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जहाँ स्किनर मेंटेन करते हैं अपना बिहेवियरिस्टिक व्यू, वही नोम चॉम्स्की का नेटिविस्टिक व्यू है। जहाँ स्किनर कंडीशनिंग की बात करते हैं, वहाँ नोम चॉम्स्की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं। जहाँ स्किनर बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की, वहाँ नोम चॉम्स्की बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रामर की। Some of the differences between these two very important yet different notions are, B.F. Skinner behavior psychology से belong करते हैं। उनकी एक स्टेटमेंट है, गिव मी अ चाइल्ड एंड आई विल शेप हिम इनटू एनीथिंग। वही नोम चॉम्स्की लिंग्विस्टिक हैं, नेटिविस्ट हैं। वो कहते हैं चिल्ड्रन डेवलप लैंग्वेज बिकॉज दे आर प्री प्रोग्राम्ड टू डू दिस। On one side, more of the focus is on the environment. On the other side, more of the focus is on the innate abilities. On one side, learning a language operates on the same principle that a rat will use to learn a maze or to learn to press a button. जिस तरीके से हम किसी ऑर्गेनिज्म को कुछ
स्टिमुलस और रिस्पॉन्स या कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा सिखा सकते हैं, वैसे ही भाषा को भी ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा सिखाया जा सकता है, स्किनर का मानना है. लेकिन what Chomsky says that language is too complex to be learned one sentence at a time. Skinner says that children learn grammar through reinforcement. Correct grammar is positively reinforced, so it is repeated. I have already said it repeatedly that he is focusing on reinforcement. While what Chomsky says that it is not true that children only learn language from what they hear and experience. ऐसा नहीं है कि जो बच्चे सुनते हैं या अनुभव करते हैं उसी से भाषा सीख रहे हैं. Because a lot of kids say things they have never heard before. क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपनी भाषा में वो शब्द भी बोल जाते हैं, वो शब्द भी बोलते हैं जो उन्होंने कभी नहीं सुनी. Next, to understand how language is acquired, you have to be able to observe it. अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि भाषा किस प्रकार से ग्रहण की जाए, तो भाषा को ऑब्जर्व करना होगा, दूसरे व्यक्ति को इमिटेट करना होगा, उसको गहनता से ऑब्जर्वेशन ही होगी तो ही लैंग्वेज एक्विजिशन पॉसिबल होगा, जो स्किनर ने कहा. लेकिन चॉम्स्की क्या कहते हैं? चॉम्स्की कहते हैं that humans are born with instincts or innate faculty for acquiring language. Now, grammar and sentence structure are learned through positive negative reinforcement, while Chomsky says that there is no way that a child can obtain a language from only its teacher and environment. And one of the most important last difference, children learn the rules of their native language by imitating what they hear in the environment, while Chomsky says that language is a process of free creation. We do not need to imitate others for language acquisition. This is it for B.F. Skinner's and Noam Chomsky's views of language acquisition. Now there are some important questions. You may practice these questions for your exam, or you may practice these questions for your competitive exams and for the recap of this slide. Thank you and have a nice day to you all.